them for welcome address. Thank you, Parul. On behalf of Training and Placement Cell, Bhubaneswar University of Science and Technology, Hisar, in the capacity of director of this cell, I express my warm welcome, heartiest gratitude towards our today's keynote speaker, Dr. Sanjeev Vashisht ji. Dr. Sanjeev Vashisht ji has motivated a big number of students, ranging from school students to university students, even to industry people who are right now working in the corporate sector. So he has taken hundreds of sessions for such students as well as employees of industries. So today we are very fortunate that he has spared his precious time to interact with our students. So before this session, I was interacting with him. So he is having a, you can say, very excellent vision about students' psychology, students' mentality, and through all his sessions, he has motivated a big number of students in that fashion, in that manner. So we were interacting, we were talking that in today's era, non-employment or unemployment is not that big problem, that much big problem as the problem of non-employability is. Because so many industries, so many companies come to our campus for campus placements. When they interact with us in advance that we need 10 students or we need 20 students, but when they start the process and when they end up the process, they are able to find only 6, 5, 4 students. So their requirement is not met. They say that we are not able to find the suitable candidate, matching candidate, employable candidate. So their general feedback, because we request them to fill the feedback form in the end of the process. So generally they write in that feedback form that we could not find the suitable students. We were having the big requirements, but we could not find the matching guys. We could not find the matching students, as well as our requirements were there. So this reveals that unemployment is not that big problem as it is discussed in the market, but the major problem is non-employability. And when we are expecting that I should have this much big package, I should have this much handsome salary when I will be placed, so it becomes our utmost responsibility. It becomes very very essential that I should prepare myself for that level. So that preparation level, that preparation part is always missing. So that's why, or that's where the training and placement cell comes into the picture, and we, through our various clubs, try our best to bridge that gap. We don't claim that we are able to bridge that gap or we have completely bridged that gap, but through programs like this, we try to bridge that gap that at least students should know that what employers are seeking, what they are looking for, what traits they are expecting. And if we are knowing those traits, we are knowing those expectations, then we can make efforts to inculcate those in ourselves. So, for that very purpose, today's session has been conducted. I appreciate the efforts of Udbhavana Club members led by Arju, Parul, and program coordinator Swati. They have designed this program, they have interacted with our speaker, and they invited you people also. And someone was telling me that Swati has given bribe also. Swati has told so many students that please come into the session, I will give you party later on. तो आई वॉज इंटरेक्टिंग विद स्वाति दैट देखो ऐसी बात है कि दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स, दिस इज लाइक फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स. So students should themselves get motivated that we are today going to get this opportunity. So I'm very hopeful that today's session will be very very useful, and I welcome all the students who
basically found the time for this session, and some of you might have left the classes also, but whatever you are going to gain in this program, that would be greater. So without taking much time, again I welcome one and all present in this hall, including our today's keynote speaker Sanjeev Ashish ji. Thank you, Jai Hind. Thank you, sir. Now I would like to call Dr. Sanjeev Ashish sir. Give a big round of applause. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो बेटा आप लोग? थोड़ा सा सर ने मेरे बारे में बताया, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। नाम तो पता ही है। I had just completed my 2200 sessions all over India. 1600 colleges. I'm working with Chaudhary Bansal University. I'm working with YMCA from last 5 years. I'm working with IIT Delhi. I'm working with AIMS Delhi. I'm working with Punjab University. I'm working with Bombay University. I'm working with PTI University. And I completed my 100 sessions with B.Ed colleges. More than 100. I'm working for 5 multinational companies to train the employees right now. I completed my MBA in 1997. Okay. और चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आ गया था कि यार उम्र से बात करो मेल फीमेल से, खत्म करो इस कंसेप्ट। बच्चे आके बोलते सर मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया। अच्छा उससे पहले मैं एक बात बोल देता हूँ, ठीक है? अभी बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज जो ऐसी है ना वो अचानक से ऐसे हो जाएगी, क्योंकि हरियाणा में, और हरियाणा का बच्चा बहुत अद्भुत होता है, बहुत ईमानदार होता है हरियाणा का बच्चा, वन वर्ड आंसर देने वाला होता है। ये बात है उसको दिया गलत तरीके से जाता है। तो मैं पहले एक बात बोल रहा हूँ, जैसी वो बात कानों से ब्रेन में जाएगी बहुत सारे लोग अचानक से रिलैक्स हो जाएंगे कि काम का आदमी आ गया। वो बात बेटा ये है कि जितनी देर आपकी मेरी बातचीत चलेगी मेरा पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। अक्सर सेशंस में लोग क्या बोलते हैं, सर आपको इंट्रोड्यूस कैसे करवाएं? बहुत अच्छे सर आए, ध्यान से सुनना, हमारे जैसे है। मतलब जैसे आपने कहा हमारे जैसे, ना चाहते हुए ये उम्र मेरे पे नहीं, ना चाहते हुए उम्र दिमाग की खिड़की बंद कर देगी और उस नए स्पीकर की तरफ बड़े ध्यान से और बड़े प्यार से देखेगी और मुस्कुराते हुए मन ही मन में एक बात बोलेगी, क्या तू भी पढ़ाने आया? यस होता है। हमारे को इतनी हिम्मत है कि हमसे बात कर सके, चल शुरू हो जा, तू भी यही है हम भी है। ये बात आती कहां से? वैसे लोग पूछते हैं क्लासेस में, टीचर पूछते हैं यार ये बच्चा मेरा अपमान करता है, मैंने कहा नहीं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, सर मेरा लड़का तो कुछ समझता ही नहीं, इसको तो जूते की भाषा से बात करो, मैंने कहा नहीं। सर आप क्या बात कर रहे हो, ये बिगड़ा हुआ है, मैंने कहा नहीं। तो बोला फिर बात क्या है? मैंने कहा बात बड़ी सिंपल सी है, आप समझने की कोशिश करो, ये भी इंसान है। 24 घंटे में से 14 से 16 घंटे जो इनकी जिंदगी है इस उम्र की, हर आदमी सिर्फ आप इनसे एक बात कर रहा है, इनका हालचाल नहीं पूछ रहा, सिर्फ एक बात कर रहा है, जो भी आदमी आ रहा है तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, ऐसी कर दी, तेरा कुछ होगा कि नहीं। और सडनली पापा की फ्रेंड आ जाए तो वो तो ऐसा इंटरव्यू देते हैं जैसे क्या हो रहा, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो। हम तो बर्फ नहीं होता था तब भी हम पढ़ते थे। अरे आपके टाइम में बर्फ का इन्वेंशन नहीं हुआ तो इसमें हमारा कसूर थोड़ी है। ठीक है, आके मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो, अगली बार वो लड़का वो लड़की उसको नमस्ते भी नहीं करता। हाँ, शक्ल देखते ही क्यों वो बोल के निकलता है, पापा को मौका मिल जाता है फ्रस्ट्रेशन निकालने का। मैं जब बचपन में था तो मेरे को कई बार पता नहीं चलता था कि मैं आज पिट क्यों रहा हूं। वो तो बाद में पता लगा जब मम्मी ने कुछ बड़े होने पे पता कि तेरे चेहरे में तेरे पापा का चेहरा दिखाई देता है। उनको मैं कुछ बोल नहीं सकती, छोड़ सकती। अरे बेटे 16 घंटे एक आदमी आके इनसे पूछ रहे तेरा कुछ होगा आ गया, और सडनली सबसे बड़ा बम काम होता है। मेरा भी एक ही बेटा है, एमएससी कर रहा है। रिसेंटली की बात है, बहुत रिसेंटली अभी सेशन शुरू नहीं हुआ, अभी ब्रेन को रिलैक्स करूंगा मैं। रिसेंटली की बात, उसका फोन आया, पापा यस ग्रेट अचीवमेंट। मैंने कहा क्या? बोला पापा 88 100 में से। फोन पे बात हो रही है घर में। मैंने कहा ग्रेट यार, क्या लेगा? खुशी हुई यार, बेटा है।
और बाप को दर्द खुशी तब होती है जब बाप के खुद के एवरेज नंबर आए और बेटे की ज्यादा आए बहुत खुशी होती है। मैंने कहा बेटा क्या देगा, तो सडनली पीछे से पता नहीं रसोई में से कि कमरे में से कहां से आवाज आई, लेना देना छोड़ो पहले इससे पूछो इसके 12 नंबर कटे कहां। माँ माँ, मैंने कहा बेटा तेरी माँ को फोन देना, फोन दिया। मैंने कहा थोड़ा इससे दूर होकर बात करोगी, बोली हाँ। मैंने कहा कहना जी की कसम का जिसको तू मानती है, तेरी जिंदगी में 2 पेपर में भी मिला के 88 आए। भैया उसने कैसी बात बोली, उसका मैं भी बोल पाया क्योंकि मालिक है, बीवी मालिक होती है, भगवान से ऊपर होती है। उसने सिर्फ एक बात बोली, तुम घर आ। और मैंने सडनली क्या बोला, आज तो नहीं आता। Are you getting what kind of torture is going on? ठीक है, तो आपका कोई कसूर नहीं, मैं आपके साथ हूं। आपका कोई कसूर नहीं, मैं आपके साथ हूं। अभी सर मेरी बात हो रही थी कि सबसे आसान काम क्या है, पैसा कमाना। इससे सब कुछ नहीं, बशर्ते हमें पता होगा हमें खुद से क्या चाहिए। आज कोई बात नहीं हुई बुक्स की, आज कोई बात नहीं हुई सब्जेक्ट की, आज कोई बात नहीं हुई स्ट्रीम की। आज एक मनुष्य से मनुष्य की बात होगी, हाउ टू हैंडल सबकॉन्शियस माइंड। सर हाँ, सबसे जरूरी काम करने जाते तो एंजाइटी क्यों आती है। सर ने अभी सुबह सुबह बोल दिया आगे क्या, भाई मैं ना 4th पीरियड में आ रहा हूं और इस पेपर का टेस्ट लूंगा। हार्ट में सडनली टेस्ट लेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, हे भगवान मैं आई क्यों, हे भगवान मैं आया क्यों। खुद की काउंसलिंग करनी शुरू करते हैं। फिर जब खुद पे दम नहीं निकलता तो सर की काउंसलिंग करनी शुरू करते हैं कि अगर तू है ये नहीं आना चाहिए। भाई प्रेशर बूम पे जा रहा है का, बहुत बूम पे जा रहा है। और सडनली किसी ने आके बोला सर आज टेस्ट नहीं लेंगे, तो सबके मुंह से दिस हैपेंस एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू। सर पहला क्वेश्चन याद हो गया, ग्रेट। दूसरा याद हो गया, ग्रेट। तीसरा याद करूं, पहला उठ गया। चौथा याद करूं, दूसरा उठ गया। एक ही सब्जेक्ट में 2 घंटे लग रहे हैं। राइट सर, आज सोच के बैठी थी कि पक्का चैप्टर पूरा करूंगी, आज तो दिखाऊंगी दुनिया को तो क्या हो। जैसे ही बुक खोली सर, सडनली ऐसे ऐसे थॉट्स आने शुरू हुए जो जिंदगी में नहीं आए। बुक खोलते 2 बजे बुक खोली और खुद का मोटिवेशन क्या कर रहे हैं, 7:30 बजे ना पढ़ लूं, 7:25 पे, 8:30 ना पढ़ लूं, 8:25 पे, हे भगवान कुमकुम भाग्य देख के पढ़ूंगी। 9:55 पे खुद की काउंसलिंग कर रहा हूं, यार पेपर तो मई में है, अभी पढ़ के क्या करेंगे। सडनली बुक बंद। सर ये कैसे हुआ, सर कंफ्यूजन होती है। एक ही खुद के लिए निर्णय लिया और वो चेंज हो गया। बहुत सोच के आया था कि आज सर के पास जाऊंगा, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। इतने में राजेश मिला रास्ते में, बोला चल मैकडी चलते हैं। अभी आईआईटी में एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि बेस्ट सैलरी कहां से मिलेगी, क्लासरूम से। इससे बेस्ट सैलरी कहीं। सर ये लास्ट में बोलूंगा, अभी बोलूंगा, कोई उठ के चले जाए कि ये छूट सकता है। मैंने कहा बेटा छूट सकता। किसी का मन बीच में करे उठ के जाने का, मोस्ट वेलकम, सर से परमिशन मैं दे रहा हूं। वो इंसान जान कर नहीं करेगा, समझना। मैंने एक बार भी बोला लड़का और लड़की इंसान, किसी का मन अगर बीच में करे ना उठ के जाने का, क्या है समझ नहीं आ रहा, क्या बुला लिया, क्या भड़क है, कोई नहीं भड़क है, उठना और निकल जाना। बाहर घूमना, पानी पीना, मन करे तो वापस आ जाना, तुम बता दो। आप मेरा अपमान नहीं कर सकते, मैं आपका नहीं कर सकता, दिस इज फैक्ट। तो ये होगा क्यों, 24 घंटे में से 16 घंटे जिस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड को मिल गया तो मैं सबसे अच्छा स्पीकर हूं। अगर वो नहीं मिला, उससे सडनली अलग ब्रेन में वर्ड आया तो ब्रेन में हलचल होगी, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी थोड़ी देर में, या थोड़ी देर में कौन है ये। और सडनली अगर वो ऐसे करते हुए इंसान को अगर मैं सडनली ये बोल दूं, अरे फेसबुक, अरे व्हाट्सएप, ये सर एक सेकंड, यस सर, अरे गर्लफ्रेंड, अरे गेटिंग, क्योंकि 16 घंटे वो सबकॉन्शियस माइंड में वो ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे ही वो शब्द उससे मैच किया, ये जरूरी नहीं यहाँ पे संजीव खड़ी है, पार्वती खड़ा, राजेश खड़ा, कौन खड़ा, नहीं,
वो वर्ड क्या मैच कर रहा है उस ब्रेन से, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां पे कोई ऐसा इंसान नहीं बैठा तो फेसबुक यूज करता हो, जो व्हाट्सएप यूज करता हो, जिसका इंस्टाग्राम से कुछ लेना देना हो, वो सिंपली एक थॉट से बैठा है कि 15 करोड़ की 50 करोड़ की कंपनी है, आज कौन सा मेरे जैसा आने वाला है जो मुझे बताएगा कि मिलकर क्या करना। जब मैं इंटरव्यू लेता हूं तो मैं भी यही करता हूं। एमबीए है ना, हाँ ये तेरी डिग्री साइड में, ये 2 पेपर दे रहा हूं, 15 मिनट दे रहा हूं। पहले पेपर पे 7.5 मिनट से 8 मिनट में ये लिखना है तू अपने बारे में क्या सोचता है, और दूसरे 8 मिनट में इसी सीवी को यहां बना। हो गया। सबसे शॉर्टेस्ट इंटरव्यू जो आजकल हम लोग पिछले 1.5 साल से ले रहे हैं, एक इंसान से 30 सेकंड बात करना है और 30 सेकंड के बाद उस इंसान को खुद पता लग जाता है कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिलनी चाहिए। 30 सेकंड, इससे ऊपर नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट ह्यूमन बीइंग से बात करने हैं आप, सबसे बेस्ट चल रही नहीं, कैसे चल सकती है? तनाव नहीं हो, स्ट्रेस नहीं हो। मैं तो एक काम कर, जो भी तेरी उम्र है इसका साथ छोड़, इसका पकड़। जिंदगी में रोना हो, असफल होना हो, दुखी होना हो, हाय हाय करना हो, दुनिया में तो समझती नहीं, ये सब करना हो, इसका साथ। जिंदगी में सफल होना, इसका साथ दो, क्योंकि 24 घंटे एक्टिविटी। अक्सर बच्चे काउंसलिंग के दौरान क्या बोलते हैं, लॉजिकल बात कर। सर मुझे कोई पसंद नहीं करता, चल तू खड़ा होकर बता दे अपने बारे में 10 अच्छी बातें। सर मैं क्या बताऊं, मेरे को तो यही नहीं पता। सोच में खड़े हो जाते हैं, आज ना प्रताप से नहीं आनी चाहिए, आज ये क्लास नहीं लेनी चाहिए, हे भगवान मम्मी से कह रही हूं मेरा ये टूर पक्का करवा दे, तो मान भी तो है। कभी आप जाके बताओ कि जिंदगी क्यों जी और किस लिए जी। वर्ड्स को कान तक जाने देना, ब्रेन तक मैं पहुंचा दूंगा। 84 लाख योनियों के बाद मिलने वाला जन्म, उस जन्म को देने वाला परमपिता परमात्मा, और परमपिता परमात्मा अपनी हर परछाई को आदित्य, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, विचित्र ब्रह्मांड को बदलने वाला ऐसे इंसान को खुद बना के भेजते हैं। ना तुम टैक्सी करते ना अल्ट्रासाउंड करता, तो हम लोग हैं। तो स्टॉप डूइंग दैट नॉनसेंस थिंक कि मेरा कुछ हो सकता है क्या। पूरा शरीर दिया, पूरी नाड़ी दी, पूरी नसें दी, ब्लड सर्कुलेशन दिया, ब्रेन से सोचने का दिया, दिल को धड़कने के लिए दिया, और इससे अमीर आदमी कौन होगा? मुझे कोई प्यार नहीं करता, तुम खुद से करते हो। मुझे कोई समझता नहीं, तुम खुद समझते हो। मेरी जिंदगी खराब है, थूक तुम पे, तुम ऐसे समझ रहे हो। Now I am the best people of the world. Just बहुत तालियां बजा ली लोगों के लिए। सबसे सुंदर तुम हो, सबसे आदित्य तुम हो, सबसे सहनशील तुम हो, सबसे ज्यादा कल्पनाशील तुम हो। आज अपने लिए जोर से ताली बजाओ। आईआईटी का स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का एक छोटी सी डायरी लिख के अमित झा नाम था उसका, अभी तक याद है, मैं सर से बात कर रहा था। सर यस, टॉप 5 कंपनीज उसने लिखी हुई थी निकलने के बाद, मर्सिडीज बेंज, जीएम मोटर्स, लास्ट में 2 इंडियंस, और आगे क्या लिखा हुआ, एरो बना के एक 18 साल के इंसान ने एरो बना के, सैलरी ड्रॉन बाय मी, एक्सपेक्टेडली ड्रॉन बाय मी 1 करोड़ पर मंथ। सर जिसको मुझे 1 करोड़ देना है, मेरे को तो 10 करोड़ कमा के देना है। अब मुझे ये बताइए कि 3 साल में
मेरे को ये चीजों के ऊपर काम करना है। लेट्स टॉक ऑन नेक्स्ट। 125 किलोमीटर, 1 करोड़ पूरे में, 1 करोड़ महीने। तुम कहाँ हो? सर कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, तुम करते हो। सुबह 5 बजे उठते हो, आप नहाते हो, यस, धोते हो, यस, कपड़े प्रेस करते हो, यस, खाना खाते हो, यस, अपने आप को डिजाइन करते हो, यस, यूनिवर्सिटी तक आते हो, यस, यूनिवर्सिटी कैसे चूज की, सर बहुत जगह फाइंड आउट करके चूज की, बेस्ट कोर्स चूज किया, यस। तो यहाँ की बंक कैसे हो गया? इस मल्टीनेशनल कंपनीज मेरे से पूछा है राइट कैंडिडेट क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं मिलेगी। बोला क्यों नहीं मिलेगी? मैंने कहा क्योंकि इनको पैसे की वैल्यू है। इसीलिए जब हम लोग बोलते हैं कि 10 लाख का टारगेट, डर जाते हैं। इसलिए जब हम लोग बोलते हैं कि सैलरी नहीं देगी, डर जाते हैं। इंटरव्यू का मतलब पता क्या होता है? आपको तोड़ना, मरोड़ना और निचोड़ना, आपका अपमान करना नहीं। आज पता चला आपका इंटरव्यू लेते हो, हम लोग तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और निचोड़ेंगे। किस लिए? सिर्फ एक कंसेप्ट से कि एक अच्छा कस्टमर भी इनके सामने आ सकता है और एक अनाड़ी भी। तो मैं 300 करोड़ की कंपनी का नाम इसके कंधे पे घेर रहा हूं, जांच करना चाहता हूं। अभी सर से मेरी बात हुई थी, यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर है। बच्चे ने क्या पूछा? एमबीए लास्ट ईयर फाइनल में। सर सैमसंग में और एमआरएफ में इंटरव्यू देने गए थे, बिना मिले निकाल दिया सब क्यों? मैंने कहा 4 चीजें बता रहा हूं, सिर्फ आई से ब्लैंक कर देना, आंख खड़ा मत करना, अपमान हो जाएगा। किस किस ने वहां जाके ये हरकत की थी? किस किस ने वहां जाके हरकत की थी? सैमसंग का लोगो था, यस सर। तो किस किस ने वहां जाके हरकत की थी जो चाहे नहीं कि हो? अनजाने में एक इंसान इंटरव्यू देने जा रहा है, भगवान की प्रार्थना करके जा रहा है, पूरे रास्ते संजो के जा रहा है सपना कि पहली सैलरी पापा की शर्ट पैंट, मम्मी की साड़ी, छोटे भाई की, और जाती हरकत क्या होगी? स्वाति, रोहित, संजय, मेरे फ्रेंड्स हैं। स्वाति, रोहित, संजय, देख कितनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने आए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अभी मिले भी, वहां से आईज ब्लिंक हुई। मैंने कहा बता भी रहा हूं, सबसे बेस्ट सैलरी क्लासरूम से आएगी, और ये सब क्लासरूम से हो रहा है, आप जान के कर रहे हैं। मैंने कहा वहां पे जाके तुमसे पहले किसी और को इंटरव्यू के लिए बुलाया, तुम मुझसे कौन पीएम के पास गया? सर पहले तो मैं आया। जिस टेबल पे तुम बैठे थे, जिस चेयर पे तुम बैठे थे, टेबल सामने थी, वहां पे बहुत सारी बुक्स रखी थी, किस किस ने उठा के देखी? किस किस ने जाके उस एम्प्लॉय से बात की? आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मेरा नाम राजेश है, आपका क्या? किस किस ने ये बात जाके बोली कि मेरी ट्रेन छूटने वाली, मेरी बस छूटने वाली? किस किस की बॉडी लैंग्वेज चेयर पे बैठने के बाद ये थी? पांव पे पांव रखा हुआ, पांव ऐसे चल रहा है, या फिर टेबल पे ये कर रहे हो, या टेबल पे पेन चला रहे हो? हमें एम्प्लॉय नहीं चाहिए, हमें पर्सनैलिटी चाहिए, हमें परसेप्शन चाहिए, हमें प्रेजेंटेशन चाहिए। आपकी डिग्री 30% काम है, 70% आपके ड्रीम्स हैं, 70% आप खुद से कितना प्यार करें। तो सबसे अद्भुत लोगों से क्या अब मैं बातचीत शुरू कर सकता हूँ? यस सर। वर्ड समझ लो, कौन से ब्रेन को दे रहा हूँ? वर्ड ब्रेन को, क्योंकि शब्दों के ऊपर काम कर लो, लाइफ मस्त। मैंने ये नहीं बोला कि क्या मैं आपसे पढ़ाई की बात करूं, क्या मैं आपको समझाऊं, क्योंकि ये शब्द पक चुके हैं आप मुझ को। मैंने क्या बोला? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? ठीक है, वर्ड्स पे काम करना चाहिए इंसान, राइट? तो चलो छोटी छोटी चीजें करते हैं। लाइक मैं पहला इंटरव्यू ले रहा हूँ, 5 कैंडिडेट को यहाँ बुला, और वो क्लासरूम भी होगी तुम्हारी, कि क्लास में मन क्यों नहीं लगता, अचानक से फॉर्म ऐसे उठता है, चल ना कल कर लेंगे, छोड़ ना, आराम से हो जाएगा। वो कल कभी आता है, अचानक से फॉर्म उठते हैं, अचानक से, और उठता भी कैसे? कोई बुला नहीं रहा, तो सडनली कोई, अरे कैंटीन में बर्गर मेरे गर्दन बन रहे।
5 बच्चों को यहाँ पे बुलाऊंगा, 5 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, और वो 5 मिनट इंटरव्यू के कैंडिडेट होंगे। बात एक से करूंगा 30 सेकंड, सिर्फ ये देखने के लिए, ये नहीं सबकॉन्शियस माइंड कितना हाथ में उसके, और पिछले 72 घंटे में जो उसके साथ हुआ है वो खुद यहाँ पे बोलेगा 30 सेकंड। मैं जादूगर शंकर की कोई सत्संग करने नहीं आया, आपकी डिग्री साइड में है। अब 30 सेकंड में आप ये जानना चाहता हूँ कि जब आप मेरे कस्टमर से मिलेंगे तो 30 सेकंड की बातचीत आप उसको क्या बताएंगे? कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई एमबीए नहीं, कोई प्रिंट मीडिया नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, सिर्फ 30 सेकंड मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे कस्टमर को बता दो। अगर 50% बता दिया, सेकंड राउंड के लिए चले जाए। रैंडमली उठाऊंगा, रैंडमली। व्हाइट टी शर्ट बिटिया खड़ी हो, तब मेरे को इनका नाम सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे को इनकी डिग्री नहीं जाननी, मेरे को ये भी पूछना है कि शहर से आएंगे, मेरे लिए तो सिर्फ एक इंटरव्यू देने के लिए आएंगे। और मेरे पास जो लिस्ट आई है कैंडिडेट नंबर 2, समझ रहे हो बेटा? मैं 30 सेकंड आपसे तो बात करूंगा, अशुद्ध हिंदी में करूंगा, और जिंदगी में जितना आपने पढ़ा उसके बाद में बिल्कुल नहीं होता। सुनने के बाद मैं दूसरा कैंडिडेट बुलाऊंगा, वो मेरा कस्टमर होगा, आप उसको इतना बता देना कि आपने सुना क्या, ठीक है ना? इतना चलेगा ना? चलेगा ना? बड़ा सिंपल इंटरव्यू है और बड़ा मैजिकल इंटरव्यू है। सर चीजें याद क्यों नहीं होती, चैप्टर याद क्यों नहीं होते, अचानक से कंसंट्रेशन क्यों नहीं बन पाती, हम चीजें भूलते क्यों हैं? सर मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ, सर एंजाइटी है। 30 सेकंड ठीक है? क्या मैंने आपसे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात की? ये एमबीए हो, बीटेक हो, मैंने पूछा कि क्या पढ़ा क्या? अब मैं दूसरा मैजिक करता हूं, खड़ा हो, आ जा। अगर इस इंसान की थॉट इंसान वाली है कि मैं इंसान हूं, अपने ड्रीम्स को पूरा करने आया, 30 के 30 सेकंड राइट बोलेगा। अगर थॉट मेल फीमेल के वर्जन की है, फीमेल के सामने मेल, अब दोनों का टेस्ट है, आपने जो भी किया आप इनको बताइए। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग? दो पर्सनैलिटीज खड़ी कर दी। अगर पर्सनैलिटी के दिमाग में क्या कि आई एम द बेस्ट ह्यूमन बीइंग ऑफ द वर्ल्ड, बुलाओ किसको बुलाना, मैं बताता हूं क्या है। और एक कांसेप्ट से जी रहे थे, मैं तो छोरा हूं हरियाणा में, मारा छोरा तन्नू, मारा छोरा कुलदीपक, अरमान देव बैठा है। कौन देने में बैठा? हो गया? खड़ा हो जा, आजा। गलती क्यों नहीं करी ना? बॉडी लैंग्वेज कैसी है? मतलब खड़ा हो जा। फोर्थ और फिफ्थ कैंडिडेट पता कितने सेकंड लेगा? 3, 5 इससे ऊपर नहीं लेगा, या 1 मिनट से ऊपर लेगा। अगर उसने 1 मिनट से ऊपर लिया, मैं तुरंत उसको बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि उससे बड़ा कहानीकार जिंदगी में नहीं। बेस्ट डे ड्रीमर यहां बैठा हुआ प्रताप सर का लेक्चर सुन रहा होगा, लेकिन मैकडी में बर्गर खा चुका होगा, दावड़ा चौक घूम के आ चुका होगा, होता है ना? कहां है तू? याद है स्कूल टाइम? कहां है तू? मैडम यही हूं। यही तो पता मैं कहा थी तुम अगल बगल पिक कियो। हो गया? अब बैठ जाओ, कम बिटिया, समझ लो। 5 कैंडिडेट, 30 सेकंड की फ्रिक्शन तो ज्यादा नहीं है ना, है ना? पिक थी सर, मैं भी फोन देखता हूँ। स्वाति तेरी जान काम बहुत थोड़ी है, सर ने मेरे को बोला तुम दोनों की नाम राशि एक है। मैं कहा चलो फिर मैं अधिकार से बोल सकता हूँ। पिक ले देना बेटा, रिपीट करो। सर इंग्लिश आसान है, फिजिक्स मुश्किल है। नहीं सर, फिजिक्स आसान है, केमिस्ट्री मुश्किल है।
नहीं सर, केमिस्ट्री आसान है, संस्कृत मुश्किल है। और सारी चीजों से तो सर सारी आसान है, ये मुश्किल है। मेरा टीचर चेंज कर दो, दूसरी टीचर लड़की, यो कोई पसंद नहीं, तीसरी लड़की, इसका समझ में नहीं आता, चौथी मेरी दुनिया ये अलग है। हो गया? पहले बार तो ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बेटा खड़ा बेटा बोल सकता हूँ ना? हाँ, एक यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पूछा मैं क्या कही हो, तेरी बेटी कहाँ से हो? क्वेश्चन भी ठीक है, क्वेश्चन भी ठीक था, तेरी बेटी कहाँ से हो? उनका नाम खड़े हो। हाँ, इसके बाद ये मत कहना कि हमारे प्रोफेसर को पढ़ाना नहीं आता, स्कूल खराब था, कॉलेज खराब था, यूनिवर्सिटी खराब था। आप भी खराब नहीं, लेकिन जो 72 आवर्स में चल हो गया। बैठ जाओ। पहले पीरियड में एनर्जी होती है, दूसरे पीरियड में ये, तीसरे पीरियड में सडनली चेयर पे, चौथे में और रिसेस के टाइम अच्छा खाना अगर मम्मी वाला पेट में चला जाए तो, और टीचर 5th पीरियड में समझ में आ रहा है? दोबारा बताओ, फिर मन में बोलते हो दोबारा बताओ, दोबारा बताओ, हमने मेरा 40 मिनट किस तरह रख के आ गए। अब 7th 8th पीरियड तक तो आते बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, निष्क्रिय। 8वां पीरियड याद है स्कूल का, मैडम बोल रही थी ये पक्का आएगा सीबीएसई में, और हमारी किताब बैग में होती थी, आने दे घंटी बजने वाली। यस बेटिया, हम भारतीय है ना, अपना कुछ मत मिलाइए। बहुत मिलाती। प्रताप सर ने मेरे को डांट दिया, आगे क्या नीचे थप्पड़ मार दिया, इसका नीचे जाके कुत्ती पे पड़ गई इसकी। आगे जब सबके बीच में पीटा, और 5वां मैं खड़ा हूं। अच्छा और बता क्या क्या हुआ था? एक लड़की ने मेरे से पूछा, मेरा दोस्त बनाने का बहुत मन करता है, लेकिन डर लगता है कि कल को कोई बात शेयर करूं तो मेरी फीलिंग्स का, मेरे थॉट्स का कोई मजाक न उड़ाए। मैंने कहा जरूरत थी नहीं दोस्त बनाए। किसने कहा बनाना दोस्त? अभी वाईएमसी में क्या पूछ रहे हैं मुझसे, इंटरव्यू में, लाइव इंटरव्यू में, क्या प्यार होता है? सब बकवास। समझाओगे बेटा, जितना सुना उतना बोल, इसमें बोल, जितना सुना उतना बोल। नहीं, जितना आपने उससे सुना है। सर सुबह निकले 9:30 बजे, सर को रास्ते में एक बिहारी मिला और उस बिहारी से पूछा कि क्या हो गया, वो बोलता है मूड खराब है। सर सुबह निकले 9 बजे, रात तक देखो कितना अपने आप को कितना सेव कर रही है। वो नहीं पता, ये नहीं बोल रही कि एक आदमी निकला, सर निकले, यानी कोई गलती हो जाए तो इसको पकड़ो। किस तरह सेव करते हैं? सर सुबह निकले 9 बजे, एक बिहारी मिला, उसने पूछा, आपने पूछा कि क्या हो गया, तो मेरा मूड खराब। मैंने पूछा क्या हो गया, बोला मूड खराब। थैंक यू। तेरा हंसना लाज चेंज किसने की? 30 सेकंड की बात की। अब सुनना, इस बेटी से मेरी क्या बात हुई? ओम से मेरी क्या बात हुई? सुबह मैं 9:30 बजे नौकरी नहीं, नौकरी के लिए सुबह मैं नौकरी करने के लिए अपने घर से निकला। घर से बाहर निकलते मुझे भिखारी मिला, उसने बोला बहुत मुझे दिए। मैंने कहा खाना या पैसे? बोला खाना। मुझे दया है कि मैंने पैसे दिए। उसने मुझसे पूछा आप शादीशुदा हो? मैंने कहा हाँ। आप नौकरी करते हो? मैंने कहा हाँ। भगवान आपकी नौकरी में तरक्की दे और आपका शादीशुदा जीवन सही से चले। सीधा मैजिक ऑफ 30 सेकंड। कोई डिग्री की बात नहीं कर रहा, कोई एमबीए की बात नहीं कर रहा, कोई एमटेक की बात नहीं कर रहा, कोई पीएचडी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं। आप सुनते क्या हो? ध्यान में कुछ और चल रहा है, निकल कुछ और है। आपको लास्ट 72 आवर्स है, और लास्ट 72 आवर्स का इतना इकट्ठा क्यों है? क्योंकि विजन नहीं है। विजन नहीं है तो खाब नहीं है, खाब नहीं है तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है तो हम नहीं है।
अभी सर और मेरी बात चल रही थी कि सर आपने 1600 सीबीएसई स्कूल किए, क्या करते हो? मैंने कहा 5th 6th 7th पहले पकड़ता हूँ, फिर 7th 8th बाद में पकड़ता हूँ, फिर 9th को बिठा के 10th के साथ बात करता हूँ कि साइंस क्यों लेंगे, कॉमर्स क्यों लेंगे, आर्ट्स क्यों लेंगे, और टिक मार करना 4 चीजों पे। साइंस क्यों ले लो, पापा के कहने पे, घर में किसी ने साइंस ली थी, वो अच्छी नौकरी पे लग गया उसके इन्फ्लुएंस में। अमित मेरा अच्छा दोस्त 7th 8th 9th 10th पक्का दोस्त, बहुत इंटेलिजेंट है, जो करेगा अच्छा करेगा, सब कैरी ले लेता हूँ, फिर उससे बात करता हूँ, तूने साइंस ले ली है? हाँ भाई बोली। फिर वो बच्चा मेरे से क्या कह रहा है, आप मेरे माँ बाप से बात करो कि मेरे को कॉमर्स दिलवा दें। मैंने कहा देख मैं माँ बाप से बात नहीं करूँगा, एक्टिविटी ऐसी करेंगे कि 7 दिन के बाद पिताजी खुद आके बोलेंगे बात करें, ऐसा हो सकता है? रीजन नहीं है बॉस, हम क्यों हैं ये नहीं पता हमें, हमने इतने चीजें पाल रखी हैं जो उसकी जरूरत नहीं है, और ये सब आ कहां से नहीं है, क्योंकि पैसे की वैल्यू नहीं पता। एक छोटा सा एग्जांपल कर रहा हूं, किसी ने मेरे से पूछा कि लाइफ समझ में क्यों नहीं आ रही, मैंने कहा लाइफ समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम नहीं चाहते। बेटा आपका नाम क्या? अनिल। अनिल और मैं यहीं पे बैठा हुआ है। अच्छा सुनो, आगे बातचीत कर सकता हूँ ना? जहां रोकनी बता देना, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। अनिल और मैं इस क्लास में बैठते हैं, अनिल को मैंने बोला 100 रुपए दियो, बोला क्यों? मैंने कहा मम्मी ने ब्रेकफास्ट दिया, कैंटीन में कुछ खाएंगे, तो अनिल ने 100 रुपए दे दिए क्योंकि उसको पता था 100 रुपए कल वापस आ जाएंगे, और बच्चों वाली हरकत मैं भी खा लूंगा। पक्का दोस्त है, एक ही बेंच पे बैठते हैं, 100 रुपए दे दिए, खाते खाते क्या बोल रहा है समझना, खाते खाते क्या बोल रहा है, 100 रुपए कब देगा? मैंने कहा दे दूंगा, कल दे दूंगा, दे देगा ना? आज तक मेरे दोस्त अनिल का फोन नहीं आया, शाम को फोन आया तो बंदा मोटिवेट कर रहा है मुझे, मेरे को मोटिवेट कर रहा है, और क्या प्यारी बातें कर रहा है। लोग कहते हैं कि इस उम्र को समझ नहीं, मैं कहता हूं इसी उम्र को ही समझ है सारी। देखो उस बच्चे को जिसको 50 रुपए लेने और मम्मी को कैसे पटाता है, 7th 8th का बच्चा, मेरी मम्मी सबसे प्यारी मम्मी है। मम्मी पहले तापमान चेक कर ली थी, क्या होगा इसको आज मेरे को मोटिवेट कर रहा है। कैसा है? ठीक हो? तभी ठीक है? हाँ। घर में कोई आया नहीं हुआ ना, कहीं जाना तो नहीं, कल छुट्टी तो नहीं मारेगा? नहीं, तेरे पास आऊंगा। इतना क्यों पूछ रहा है? 100 रुपये। अगले दिन वो आया, बंदा यहाँ खड़ा हो, 100 रुपए दे। मैंने कहा अंदर तुम्हारे अंदर रहते, एक 100 रुपए के लिए उस इंसान को हलचल मच की तो उसके थे ही नहीं। आज अपनी डायरी घर जाके निकालो, 2 इंसान है, माँ और बाप, नर्सरी से अब तक कितने खर्च हो चुके हैं। अगर जुबान तुम्हारे पास है तो जुबान उन दोनों इंसान के पास भी है, माँ और बाप। सिर्फ हिलानी है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम एडमिशन नहीं करवा सकते, तुम जो कर सकते हो कर लो। बिना आंटी की जमाना है, तब तो चलती है। पापा हाँ जूते ले दो, तेरे पास तो 3 जोड़ी है, समझा करो, जीजे में जा रहा हूं, तू मेरी बेइज्जती करवाते हो। 3 दिन। मम्मी एक जीन्स और। मम्मी हाँ आज ही खाऊंगी। और घर जाके क्या खाना है ये? हाँ सब्जी बनाने नहीं आती आपको, और क्या मेरे पीछे पड़ी रहती हो? कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले, पता है आपको, आप खुद हो एमबीसी। पापा से बात करें, छोड़ ना फोन, पापा से बात जब देखो खाने को होता है। वो बाप इस वक्त कहां है? नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तुम आराम से यहां बैठे हो और वो ये कर रहे हो। हिंदुस्तान में मिडिल क्लास फैमिली में अक्सर रसोई में एक बात बोली जाती है, और वो पत्नी पति को बोल रही थी, सुनते हो क्या आपको दिन में 15 मिनट नहीं मिलते कि खाना खा लो? अरे यार सुबह सुबह से बोलने लग रहा मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, इसको पूरा कर। पापा हाँ सेमेस्टर की फीस देना। उठाई
काउंटर पे फेंकी, रिसीट ली, वापस ली। हमारा कुछ लगा नहीं तो हम बंक कर सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स की वैल्यू कहाँ है हिंदुस्तान में प्रताप सर? ये है पेरेंट्स। अगर यहाँ पे किसी मनुष्य ने किसी नर्सरी के बच्चे को पढ़ाया होता, किसी एलकेजी को पढ़ाया होता, किसी फर्स्ट क्लास को पढ़ाया होता, किसी सेकंड क्लास को एज ए हॉबी 1 घंटे पढ़ाया होता और 1 घंटे हॉबी के तौर पे पढ़ाने पे ब्रेन फ्रेश करता अपना, और वहां से उसको 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए जो भी मिलते उन 5 अच्छी को पढ़ा के अगर वो पैसा उस एडमिशन के अंदर डाल देता, या डैड को इतना बोलता कि इस बार की चीज में खुद दे दूंगा, आप नहीं, आपको क्या लगता है अगर वो पैसा प्रताप सर के थ्रू फीस में जाता, आपको लगता है आप टीचर को आराम से जान देते बाहर? नहीं। क्यों? मेरा पैसा लगा इस बार। कोई बोलता आपको बंक कर ले, तू कर ले, मेरे को पता कहां से कमाए, बंक कर ले। इसलिए तो जॉब मिलनी नहीं, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि आपको इतने लाख का टारगेट करना पड़ेगा। सोचा ही नहीं कभी यार अपने बारे में। हम तो 3-4 हजार 300-400 में जी रहे। ब्रेन कहां से एक्सेप्ट कर गया? सबकॉन्शियस माइंड इतनी बड़ी अमाउंट को कैसे एक्सेप्ट कर गया? समझ में आ रहा है कुछ? अगर खुद फीस भरी होती सीधा भाई साहब, सीधा मैं, अनिल, स्वाति, पारुल, राजेश खुद फीस भरी होती तो सर को क्या बोलते था कि सर हमारी क्लास खाली है, किसी को भी भेज दो सर। अब नहीं तो सर हमें बताओ, हमें ये चीजें पूरी करनी है। क्यों? आज लगा है क्लास खाली है, ओ बेटे चल चला। क्यों? उस गधे इंसान का लगा जो सूरज में तड़प रहा है। क्या हमें इतनी हिम्मत नहीं जाके बोले क्या तू पैसा लगा रहा है हमारे पर? हम नहीं करना चाहते। My second round of interview started now. आप खड़े हुए, कम है। आपको मैं 120 सेकंड दे रहा हूं, 2 मिनट। ना आपको अपना नाम बताना है, ना आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, वो हमने आपको सारे फॉर्म से दे दी है। सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, ठीक है? 120 सेकंड में 10 अच्छी बातें जो आप में है वो बताइए। सिर्फ कुछ मत बताना, बीएससी एमएससी कुछ नहीं सुनना मुझे। 10 अच्छी बातें जो तुम्हारे ब्रेन में, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको लेके तुम जिंदा हो, मुझे वो सुनना है। कम है, क्योंकि अगर ये अच्छा बोल रहा है, अगर ये अच्छा सोच रहा है, अगर ये डील कर रहा है तो मेरी कंपनी को करोड़ों रुपया आराम से कमा सकते हैं। और वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। Your time starts now. समझ में आ रहा है? एक इंसान से पूछ रहा हूं अपने बारे में अच्छी बातें बता दो। समझ में आ रहा है? दुनिया के बारे में नहीं, किसी की बुराई नहीं। समझ में आ रहा है बेटा? एक इंसान से क्या बोल रहा हूं, अपने बारे में अच्छा बता दे तो सोचता है। सी कम डाउन। मेरे को सिंपल इंटरव्यू करने हैं, कॉम्प्लिकेटेड करने ही। कहां से बताएगा जब अपने बारे में कभी लिखा नहीं, अपने बारे में कभी सोचा नहीं, अपने को इस दृष्टिकोण से देखा नहीं। कहां से उसके मुंह से पैसे की बात मिलेगी? कहां से उसके मुंह से टारगेट की बात मिलेगी? कहां से उसके मुंह से ड्रीम्स की बात मिलेगी? कहां से उसके मुंह से लिखेगा कि लोग कौन सी कार लेंगे? इतना कॉम्प्लिकेटेड जीवन है हमारा कि हम अपने बारे में 10 अच्छी बातें बता सकते। अभी उसको मैं बोलूं कि इस लड़की के बारे में बता 10 नेगेटिव आएंगे। अभी मैं उसको बोलूं इस लड़के के बारे में बता रहे 20 नेगेटिव आएंगे। क्यों? फीलिंग। तो क्या वो उसके बारे में नेगेटिव बता रहा है? नहीं, वो वॉमिट कर रहा है क्या है। तो आज के बाद याद रखना, कोई तुम्हारे बारे में अच्छा बोले या बुरा बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से सुनो, यहां से निकालो, तुम कितने हो वो जान। तू बंदा है। थैंक यू।
तेरा कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। तेरे जैसे बहुत देखे, धन्यवाद। खत्म कहानी, 3 सेकंड। तू अच्छा नहीं है, किस दुनिया तेरे में ये चीज नहीं है, किस दुनिया। इतना बेस्ट खाना एनर्जी कहां वेस्ट करना। किन लोगों की परवाह कर रहे हो? उन लोगों की जो ये भी नहीं जानते कि तुम कौन सा कोर्स कर रहे हो। किस डिपार्टमेंट के बच्चों की परवाह कर रहे हो? उनकी जिनको पता नहीं तुम्हारे सपने क्या है। मेरे को ये बताओ, ये जो जिसके लिए मेरे को सरकार बुलाया, व्हाट एम्प्लॉयर लुक फॉर एंड हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट एम्प्लॉयर लुक फॉर। आ गया यहाँ पे, अपने बारे में अच्छा बताओ। पेपर में क्या था? वी रिक्वायर कैंडिडेट विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, यही था सर, ठीक है। वी रिक्वायर कैंडिडेट विद एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। डिग्री तो साइड में। क्या आपसे आपके बारे में पूछना गुनाह है क्या? सिक्सटी 60% बच्चे सीवी के कारण रह जाते हैं। सीवी, उनसे पूछो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूम, नहीं पता। उनको बोलो अपना सीवी बना दे, नहीं बन रहा होता। क्यों नहीं बन रहा होता? रीजन बता देता हूं। अमित शर्मा, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, एमबीए फाइनल ईयर स्टूडेंट, उसका सीवी उठा के देखा तो उससे मैं क्या बात कर रहा हूं, अमित, मैंने कहा हाँ, मेरी बीवी के लिए एक अच्छा सूट सिल दे। और उसको बुलाया भी दोपहर को था, सुबह से बैठा हुआ था, दोपहर हुई, तब गया प्रताप जी, तब गया। पेशेंस नहीं है इस एज में, तब गया और उसको बिठाया भी तो दोपहर तक, सिर्फ ये चीज आने के लिए कि कल को अगर मेरा कस्टमर इसको बिठा के चला जाए, ये बैठेगा कि नहीं। व्हाट एम्प्लॉयर, तब गया। सर ये कैसा क्वेश्चन है? इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया ये काम करने के लिए? मैं कहा सही बोल रहा है, हमारी गलती है। मैंने कहा चल अच्छा बता दे, सबसे अच्छा खाने में क्या बनता है? लड़का उठा, अपनी शीट उठा रहा है, सर अगर यही करना होता ना तो हमारी बेइज्जती मत किया करो। मैंने कहा अब रुक जाए, ये शीट जो तूने उठाई है, इस शीट को खुद पढ़। शीट को पढ़ा प्रताप जी, मुंह नीचे हो गया। कि शीट में हॉबीज में क्या लिखा हुआ है? स्टिचिंग और कुकिंग। अब ये बता, ये बनवाया कहां? सर साइबर कैफे में, यूनिवर्सिटी जाते हुए दे गया था। अपना नाम, पिता का नाम, घर का एड्रेस और ईमेल एड्रेस दे दिया, बाकी बोला आते हुए लिखा। साइबर कैफे मतलब क्या हुआ कि ये इंसान अपना आईना बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं इंटरेस्टेड हूं। उससे पहले किसी ईमेल का बनाया था, ईमेल का नाम बताया, उसका जोड़ दिया, फीमेल के सारे उसमें आ गए। और हद तो देखो, लेने के बाद साइन कर दिया और पढ़ भी दिया। यानी अगर देखो मैं अपनी कंपनी का डॉक्यूमेंट दे दूं कोई, तो पढ़ेगा ही नहीं, ऐसे किसी कस्टमर को देगा, हमको बर्बाद कर देगा। और आधे से ज्यादा बच्चे तो सीवी कैसे लेके आते हैं? 20 रुपए की शीट आती है, प्लास्टिक शीट जिसमें लगा सकते हो आप, उसको मरोड़ा हुआ होता है या ऐसे किया हुआ होता है, आज तो यहाँ पे लगा रखा होता है, बोर हो जाते हैं। यहाँ पे तेरा भविष्य कहाँ है? ना देख देख काफ में। ये चीज कहां से है? क्लासरूम से। लेजीनेस क्लासरूम से। टीचर का लेक्चर करता ना तो कॉपी अपने आप यहाँ पहुंच जाती है, बातें यहाँ या क्लासरूम में बात करें तो दोस्तों से अपना मुड़ जाती है कॉपी अपने आप। और क्लास नेक्स्ट लड़के को बुलाया, तो क्या बोला? रोहित सर, ओके यस, ये जो ऊपर 4 अच्छी लाइन लिखी है ना आपने, ऑब्जेक्टिव है बेटा, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, जरा हिंदी में बता दे। और उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज क्या उसको देख के बताता हूं सर। जो 4 लाइन लिखी थी ना ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो तुम साइबर कैफे से उठाते हो, नेट से उठाते हो, वो एक एक वर्ड, एक सेंटेंस का होता है, इतने भारी वर्ड होते हैं।
जाओ चोरी कर रहे हो खुद से। किसी ने कहा कि भारी वर्ड लिखने को, इंटरव्यू को इतना आसान बनाओ कि बंदा तुम्हें बुला ले, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। ये दो 3-3 पेज प्रेशर बना रहा, 2-3 पेज क्यों? मैंने अनिल को पूछा, अनिल बन गया तेरा? हाँ, मेरे कॉपी पेस्ट कर दे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट? सिंपल सीवी और रेज्यूमे, एक प्रेशर का नाम, एड्रेस, घर का फोन नंबर, दैट्स ऑल। नीचे जहां सबसे ज्यादा 60% लोग रहते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10, उसके बाद सीधा ग्रेजुएशन लिखो। तो क्या कर रहे हैं? 10th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। अरे कॉमन सेंस की बात है, 10th के बाद बीएससी है, एमएससी है, कुछ और। उसके बाद नीचे क्या लिख रहे हैं? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एमएससी, रेज्यूम रिजेक्टेड। क्यों? ग्रेजुएशन के बाद जो भी आप लाइफ में करोगे वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। That's the reason 70% रिजेक्शन। उसके बाद हॉबीज लिखो ही मत, और लिखनी है तो एक लाइन लिखो ना, keen to learn, KEEN, keen to learn everything in life, learn। minor achievement एनसीसी, स्कूल कलर, मेजर अचीवमेंट जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। नीचे डिक्लेरेशन, उससे पहले पर्सनल स्टेटस, पापा आने बंद, बैक में। हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है? आप अपने बारे में क्या जानते हो? आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन, आप हमारे लिए क्या करेंगे? उसके सीधी सी आंसर है, सीधी सी दिन रात एक कर दूंगा। एक बार मौका दे दो, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों दे दूं? हरियाणा बहुत प्यारा लगता है। भिवाड़ी में एक इंटरव्यू लिया था KTM का। एक लड़का आया 10 लाख की गाड़ी में, बेंटो, 1 लाख का मोबाइल, जॉब के लिए आया। आज बैठ के क्या बात कर रहे थे, बात हुई प्रताप से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग। मैंने कहा भाई सैलरी? बोला सर कोई बात नहीं, बाद में दे देना। कहाँ है? कोई बात नहीं, बाद में दे देना। सैलरी नहीं चाहिए? तो चाहिए, लेकिन उससे पहले नौकरी चाहिए। मतलब चाय पीते बात करते, बड़ा इंटरेस्टिंग बात नहीं, सैलरी नहीं चाहिए, मतलब उससे पहले नौकरी चाहिए। वो तो समझ में आता है, ये क्यों बोला 3 महीने बाद दे देना? बोला सर दिन की बात बता दूं? मैंने कहा बेटा तेरी नौकरी गई है। दिन की बात बता दूं? मैंने कहा तेरी नौकरी गई है। बोला सर मेरी लव मैरिज होने वाली है। सडनली लड़की ने ये बोलती है कि पहले नौकरी ढूंढ के आ, अपने पैर पे खड़ा हो, ये गाड़ी तेरे बाप की, ये कपड़े तेरे बाप के, किसी वक्त उतरवा सकता है, मैं कहाँ जाऊंगा? यार सलाम हरियाणा की लड़की, लॉजिकल लड़की, क्योंकि लड़की को समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं होता, ये पहले ये भरेगा तो अच्छी बात निकलेगी। खाली पेट मैंने 16 सोमवार रखी है, कुछ नहीं मिला उससे। अरे बेटे मैंने कहा नौकरी नहीं मिलेगी। उनका क्यों? क्योंकि तू उसको धोखा दे रहा है। और सबसे बड़ी बात उसको नहीं दे रहे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट? अपने सेशन से एक सेकंड बाहर नहीं जाऊंगा, 24 साल का एक्सपीरियंस है। कहां गया ये मनुष्य? एक मनुष्य से उसके ड्रीम्स पूछ रहा हूं। क्या एक 22-23 साल के नौजवान को बात करनी नहीं आती? आती है। क्या एक 22-23 के साल के नौजवान को प्रेजेंटेशन नहीं आती? बेहतरीन आती है। क्या एक 18 से 22 साल या 23 साल के नौजवान को ये नहीं पता कि सबसे बेस्ट चीज मेरे लिए क्या है? सब कुछ पता है। क्या एक 22 से 23 साल के नौजवान को ये नहीं पता कि शब्द अच्छे कौन से? सब कुछ पता है। तो फिर मार कहां है? मार सिर्फ यही आ रही है कि जब उसके कैरियर की बात आती है वो सो जाता है।
क्यों सो जाता है? क्योंकि कभी सोचा ही नहीं मुफ्त की रोटी पेट में जा रही है। एक लड़के ने पूछा, सर 4 इंटरव्यू फेल हो गए, अगला ना हो तो क्या करूं? मैंने कहा सिंपल एक बात, तेरे से बात कर रहा हूं, तेरी उम्र की बात कर रहा हूं, जैसे पहली गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रयास किए थे वही प्रयास अब इंटरव्यू में होना चाहिए। पहली गर्लफ्रेंड बनाई थी ना? हाँ, वैसे रखी थी ना, किसी को कान कान खबर नहीं इसके पीछे। प्राइवेसी, डेडिकेशन, कब निकलती है, कहाँ जाती है, कहाँ पहुंचती है, वहां पे खड़ा हो गया, बारिश आ रही है आने दी, कोई कमिटमेंट नहीं कि उसने बोला कि मैं आऊंगा, लेकिन खड़े हो गए, कमिटमेंट। ऑब्स्टिकल्स को पार करना, ऑब्स्टिकल्स को पार करना मतलब जिंदगी में कुछ भी करेंगे। दोस्त के पास जा रहे हैं, अचानक से अच्छे वर्ड बोलेंगे दोस्त को, बड़ा खूबसूरत है यार तू तो, यार तेरे जैसा दोस्त, तुम प्रेजेंटेशन देखना वर्ड्स की, तेरे जैसा दोस्त तो है ही कोई मेरा यार। आपका नाम क्या है? वैभव। वैभव सच बता रहा हूं, तेरे जैसा लड़का ही कोई नहीं यहाँ पे। मैंने तो सबको कह दिया था कि वैभव से सीखो कि कैसे मदद करता है सबकी। वैभव बाइक की चाबी दियो। वर्ड्स, जब अपनी नियत आई तो वर्ड्स। आज वो बोल रहा है नहीं मैं नहीं दूंगा इस फजूले काम के लिए। फिर मोटिवेशन क्या कर रहा है? क्या तूने जिंदगी में प्यार नहीं किया? उस प्यार को याद करके दे दे। आई गेटिंग? जब अपनी नियत हो तो वर्ड्स कैसे अच्छे से निकल के आ रहे हैं। एक बुरा वर्ड बोल और उसकी बाइक लेके जा रहा है, आगे फाटक बंद है, कमीज तक फाटक नीचे से जाती है। वहां से कोई कमिटमेंट नहीं है कि मैं तेरी हूं। नेक्स्ट होमवर्क, क्या पहनती है, क्या खाती है, कहां से आती है, कहां से जाती है, पूरा होमवर्क। इतना होमवर्क माँ बाप के ऊपर नहीं किया था कभी। ट्रांसफर टू जॉब, होमवर्क, जिस कंपनी के लिए जा रहे थे, कब खुली थी, पहला शेयर कितना ऊपर गया था, तीसरा शेयर कहां पे था, कौन सा शेयर डाउन आया, कौन सा अप गया। कमिटमेंट खुद से, पापा एक ही बार पैसे लेके जा रहा हूं, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। वही कमिटमेंट, बारिश आ रही है कोई बात नहीं, इंटरव्यू देने जाऊंगा, चेक लेने जाऊंगा, कोई पूछेगा कि ले क्यों, सब कमिटमेंट की। प्राइवेसी, किसी को कान कान खबर नहीं होने देना ताकि लोग मेरा अपमान न करें। आधा मोटिवेशन का काम होता है जब हम चीखते हैं, अनिल इंटरव्यू तेरे भाई का, देख लेटर आ रहा है, उसका लेटर नहीं आया, उसका दिल जला रहा हूं। और फिर ढिंढोरा पीटते, सर ये देखो आ गया, ये छाप दिया व्हाट्सएप पे। जिनकी नहीं आई, जिनको नहीं मिला, उनकी वाइफ क्या आ रही है, इसका किस पे आ गया। अब वो सारे अपना काम छोड़ के बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि तेरा होगा कि नहीं, आजा बेटा। मिनट मिनट में फोन दे, हो गया, मिल गई। और बाई चांस नौकरी नहीं मिली तो वही आदमी यूनिवर्सिटी नहीं आता, क्योंकि ढिंढोरा पीटा था। बाद में पीट देना। क्लास में क्या करते हो, मैं देख तेरा भाई देखिए कि मैं करेगा, आपा न्यू हरियाणी भाषा में, आपा न्यू आपा किला काट जाएंगे। अरे तेरा भाई न्यू हो रहा, कौन आवा बनाता देखी तू, कल देखी, कल नजारे देखी, नजारे वो सारे बैठे नजारे देखे। क्यों? होने दो ना काम और चीखने दो काम को। सर बेस्ट सैलरी कैसे निकलेगी क्लासरूम से, कैसे? यहां जो टीचर आ रहा है तो खून पीछा, खून पीने का मतलब प्रकार मारना नहीं है, मार दे उसके अनाड़ी है भाई, हरियाणा में मार के क्या होता। खून पीने का मतलब क्या है, वही 100 रुपए वाली बात, मेरे फादर के पैसे फीस में गए और फीस से इसकी सैलरी में आ गई। तो आज सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करते हैं ताकि घर जाके होमवर्क ना करना पड़े। आप समझ रहा, जिंदगी में होमवर्क करने की जरूरत नहीं। वो टीचर आया, मोटिवेशन क्या आ रहा है, पहले पीरियड से आइज क्लोज करो 1 सेकंड के लिए। आज पापा और मम्मी दोनों साथ हैं, पापा
और मम्मी दोनों साथ है। आज इनको प्राउड फील करवाते हैं, बेइज्जती नहीं। टीचर समझा रहा है, समझ में आया? बाप ने बहुत सारे पैसे लगा रखे और माँ घर में रोटी देगी, तनाव लेके नहीं जाना। नहीं आया, दोबारा समझाओ। क्या वो टीचर मारेगा? प्रताप सर के पास नहीं देगा कि क्या लड़का है? नहीं, दोबारा बताएगा। कॉन्शियस माइंड में सुना, सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो गया। इतने मेरे को तीसरी लड़की बोली, सर थोड़ा और बता दो। तीसरी बार बताया तो मर्ज हो गया, ब्रेन मर्ज हो गया। पहले कितने क्वेश्चन और थे? 4 रूटीन में, एक करवाती। समझ में आया? अरे पूछ लो, लिया वो। अरे समझ आया? हम नहीं बोलते, वो समझ लेता आगे। दूसरा, किसी को डाउट है क्या? तीसरा, अरे कुछ तो बोलो, बाकी क्या मुझे बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या? इतने में बेल बज गई। उसका कुछ नहीं किया, उसके तो 1.5 लाख जिम में है, उसके नहीं कटे। बाहर गया, और सब मैं और अनिल और मैं और बैकअप लगे आपस में। पहला समझ में आया ना, दूसरा आया बावड़ा है, पहला नहीं आया। तीसरा आया, फिर मैं इसको अनिल को बोल रहा हूँ, एक बार चलो उसके लगे कुछ क्या बावड़ा है, बेइज्जती करेगा, इतना लंबा भाषण सुनाऊंगा, बैठ जा। अगले दिन वैसी हिम्मत नहीं हुई, अगले दिन 3 6 क्वेश्चन करवा दिए। और घर जाके हम किताब खोलते, घर जाके बुक खोलते, तुम्हारी हालत पता क्या होती? किताब को देखते ही, अगर किताब यहाँ पे होती, बाप रे इतने। फिर खुद की काउंसलिंग करते हैं, बेटा तू तो गया, री पक्की है, कुछ ना हो रहा था। ट्रेनिंग पार्ट में भी यही, इतनी बुक हाथ में मिलती, आदत नहीं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट। मुझे नहीं पता मैं लाइफ में दोबारा कब आऊंगा। अच्छा मुझे बताओ, आगे बढ़ना है या यही बंद करें? यस या नो? यस सर। जस्ट क्लैप फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर मी। और उस एक्टिविटी से पता लगेगा कि इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस 0। और वो एक्टिविटी क्या है? देखो भैया, रुको पहले मैं बहुत जरूरी ये बात बोलना, मैं किसी का अपमान करने के लिए ये बात नहीं बता रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ जी। मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करने नहीं आया, हाथ जोड़ रहा हूँ जी। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी का दिल दुखाने का, हाथ जोड़ रहा हूँ जी। प्लीज अपने ऊपर मत लेके जाना। मैं प्रताप सर की तरफ से भी हाथ जोड़ रहा हूँ कि हमारा ये सेशन करने का मतलब आपका अपमान करना नहीं है। प्लीज ईगो पे मत ले जाना इसको कि सर ने बताया कि ये लड़की ऐसी है, ये लड़का ऐसा। प्लीज, वो एक्टिविटी क्या है जिससे पता लगता है कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस 0 है? ये है वो एक्टिविटी। और उसके बाद भेजना, मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे बताओ। और फिर हम पढ़ भी नहीं, पढ़ते हुए रहे। आज सर का सेशन था, अच्छा था, तुम बताओ, लिख के साइड में और हम पढ़ रहे हैं। आप बॉडी लैंग्वेज देखना उस ह्यूमन बीइंग की। 30 सेकंड के बाद सिर्फ ये जांचने के लिए कि मुझे कौन कौन प्यार करता है। हाँ, एक भी नहीं है। ये पारुल, रुचि, स्वाति, राहुल, संजय सब झूठे। ये भगवान, फिर वो खुद की काउंसलिंग करता है। अरे नहीं, ये सब अच्छे, मेरी फोटो ठीक नहीं आई। फिर उसकी एडिटिंग करता है, नीचे लिखता है ये वाली देख के पता। मुझे नहीं पता, मैं अनिल को भेज रहा हूं, उसका फोन स्विच ऑफ है। मैं वैभव को भेज रहा हूं, उसका वाइब्रेशन पे है। मैं पारुल को भेज रहा हूं, उसमें साइलेंट कर रखा हुआ है। और कभी कभी दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान सामने होता है सर। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? पापा सामने होते हैं, होते हैं कभी कभी, बैठ के बात कर लेते हैं।
कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है पापा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ना पापा। बेटा बुरी आदत में नहीं है? ना 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 ना, ना बिल्कुल नहीं। देख बेटा इससे दूर रही। पापा मजाक ही नहीं है, सिर्फ सुनने के लिए तू। इतने में मेरा मैसेज गया, टन। बाप ने देखा टन, और फिर बाप ने बजाया टन 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 टन। उसको मौका नहीं शुरू होने की थी। बीवी के ऊपर बोल नहीं सकता, बड़ा मुश्किल थी बीवी के ऊपर बोलना। परमात्मा होती है, परमात्मा से कम नहीं होती बीवी। टन 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 टन। और वो बंदा गुस्से में बैठा कि किसने मेरी घंटी बजवाई। सडनली देखो पढ़ाई कैसे छूटी, पढ़ते पढ़ाई सडनली उसने देखा, और देखते ही उसने नीचे वाला कमेंट पढ़ा, पिक्चर में देखी मैं कैसी लग रही हूँ। गुस्से में था, दिखा कत्ती बूंदी ला गया तू। वो शब्द पढ़ते ही कत्ती बूंदी ला गया तू, किताब अपने आप बंद होगी। और वो क्या सोच रही है, कल सुबह तो पक्का जाऊंगी यूनिवर्सिटी और सबसे पहले इसकी बुद्धि पकड़ूंगी। बूंदी की स्त्रियां क्या मजाक कर रहे हो अपने आप से? मैं कैसा हूं? घर में शीशा है, अच्छा हूं, बेस्ट है, हाथ में चल रहे, जुबान चल रही, दिमाग चल रही, यस। और दिक्कत हो रही, मम्मी पापा से पूछो, मम्मी से पूछो कैसी हूं, मेरी बेटी राधा रानी, मेरा बेटा खाना चाहिए। और दिक्कत हो रही है पॉजिटिव करने के लिए, परमात्मा की फोटो घर में लगी है, उसको बोलो तूने बनाया तो बेस्ट बनाया होगा, अब तेरे को बताऊंगा तूने गलती की। खत्म कहानी। क्लास में आके क्वेश्चन के आंसर पूछे, क्लास में आके पापा के पैसे की वैल्यू करो, सडनली पता ही नहीं चला कि जो तुमने एग्जाम्स दिए थे तुम्हारे 98% कैसे आ गए, क्योंकि तुमने तनाव नहीं लिया, क्लासरूम में होमवर्क खत्म करके गए। और भाई साहब मेरे प्यारे बच्चों, आइस क्लोज करो। अरे बैग मतलब वैसे कर लिया, ऐसे बैग आगे कर। इस आवाज को जरा कान तक जाने देना। आप कल से आए हो अपने सारे क्वेश्चंस का जवाब लेने के लिए, आप कल से आए हो तनाव खत्म करने के लिए, आप कल से आ रहे हो या अगले पीरियड से आ रहे हो कि पापा मम्मी के पैसे की वैल्यू करनी है, आप आ रहे हो कि मम्मी की एक एक गर्म रोटी का हिसाब दे रहे हैं, आप आ रहे हो कि मैं परमात्मा की सबसे अद्भुत दे दूं और अपने क्वेश्चंस का जवाब देके जाऊंगी। ये करते करते 7 से 15 दिन हो गए और एग्जाम आ गई। एग्जाम खत्म होते ही सडनली आपको पता लगा कि आपके यूनिट टेस्ट में 100 आउट ऑफ 92 है। और वो 92 जैसे ही पापा ने देखे, घर का माहौल सोचने क्या हुआ, सिर्फ सुनना और इमेजिन करना घर का माहौल। पापा फोन कर रहे हैं सभी को, अरे मेरी बेटी को देख, दैनिक भास्कर में, दैनिक जागरण में, हिंदुस्तान टाइम्स में अपने सारे दोस्तों को ट्वीट कर जा रहे हैं। मम्मी उठ के बाहर पड़ोस में जा रही है कि देख मेरी लड़की के लिए तू इतना तरह बोलती थी ना, ये है मेरी लड़की। और उसके बाद क्लास में आ रहे, क्लास में आते टीचर वेलकम कर रहे हैं और सारे दोस्त जो आपके थे वो आपके पास आके पूछ रहे हैं यार कैसे किया। आज तक बहुत सारी मोटिवेशन कहानियां पढ़ी थी, आज यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जाते हुए आप सबसे सुंदर कहानी। इस सपने को 10 से 30 सेकंड देखो और जो इस सपने को जीना चाहता है जोर से अपने लिए ताली बजा देना। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। That is you. कहां भटक गए? सर क्या वाकई में प्यार होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इस धरती में बकवास है। प्यार का नाम दो ऑब्जेक्ट का। अगर किसी ने मेरा यूट्यूब पे मेरा इंटरव्यू देखा, आईआईटी लिया था, भाई से लिया था, प्यार नहीं होता, एक ऑब्जेक्ट से सिर्फ फीलिंग्स होती। यहां देखा पापा खड़े, ठीक है, मैं गया, पापा आप बहुत अच्छे हो, शाम को एक बैट ले आए, ठीक है, पापा बैट ले आए, माय बेस्ट पापा। और पापा किसी कारण बैट लेके नहीं आए, पापा क्या आया आपको पता कुछ नहीं। आप मम्मी को बोल के राजमा चावल बनाना, घर देख बेटा दही, मम्मी क्या है, ऑब्जेक्ट।
घर का माहौल कुछ विपरीत है, हम कुछ नेगेटिव हैं। सर ये इंट्रैक्शन क्या होती है? कुछ नहीं होती। घर का माहौल नेगेटिव है, हम भी नेगेटिव हैं। हमारे ब्रेन ने अच्छे शब्द नहीं सुने। हमारे ब्रेन ने, मैं किसी को वॉलंटियर बना सकता हूं, बेटा आप कर लीजिए। क्या इसको पर बात करनी चाहिए? क्या इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए? यस या नो? Yes, sir. बहुत जरूरी इससे बात करना, क्योंकि 23 नहीं 32% सुसाइड रेट हो गया है 18 से 25 साल की उम्र का। 32% यंगस्टर्स। मैं नेगेटिव हूं, घर में मेरे भी नेगेटिव माहौल है। ये इंसान पॉजिटिव है, इस इंसान के घर में सारे प्यार, वर्ड सुनना, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूं क्या, इस इंसान के घर में सारे प्यार से बात करते हैं, ये एक संस्कार है। सबका आदर करते हैं, ये एक संस्कार है। ठीक है, सबसे अच्छे से मिलते हैं, ये एक संस्कार है। और सुबह उठ के सब लोग पूजा करते हैं तो सबका ब्रेन पॉजिटिव है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैं इस ऑब्जेक्ट के पास आ, और इस ऑब्जेक्ट का जो नेचर है वो नेचर के हिसाब से काम कर रही है। क्या इसके लिए ए बी सी डी जेड कोई मैटर नहीं करता। अब लोग क्या बोल रही है, अरे आप कैसे हैं, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। उस इंसान को सदियों हो गई ये वर्ड सुन, यानी सदियों हो गई ये वर्ड सुने, क्योंकि घर में वो बोलता है मैं कैसा हूं, कैसा है कुछ नहीं, वो दोस्तों से पूछता मैं कैसा हूं, तो तरस रहा है कि कोई इंसान है नहीं कि मेरे बारे में अच्छा बोलेगा। सडनली एक इंसान है, उसका नेचर, अरे आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, नहीं मैंने आपका काम देखा, बहुत वंडरफुल, यू आर सो रियल। वो गया और मैं, यार ऐसा इंसान की तो वेट थी। नेक्स्ट डे एज पर नेचर, मेरे को इनसे कुछ नहीं लेना, मैंने वॉलंटियर बनाया, प्लीज मेरे सेशन से बाहर मत निकल जाओ। उसकी हैबिट क्या है, उस ऑब्जेक्ट की हर एक की प्रशंसा करना। और प्रशंसा क्यों करना, सिर्फ एक इससे इसको मोटिवेट करना ब्रेन को कि इसको नेगेटिव वर्ड नहीं देने। मैं अच्छा हूं, मैं कर सकता हूं, मैं बेहतर हूं, मैं बढ़िया हूं, भगवान ने कुछ सोच के बनाया, आई एम द बेस्ट। आपका नाम क्या? कशिश। ठीक है, और अपने आप देखो, any human being can come back in his life or her life in 10 seconds। एक ह्यूमन बीइंग की आदत है 2 मिनट डिक्शनरी को देने की और अपने लिए अच्छे वर्ड निकालने की। कशिश, KASHISH। ठीक है, अब ये जो इंसान है ये कह रहा है मेरे को दुनिया से नहीं जानना कि मैं कैसा हूं, मैं खुद के बारे में लिखूंगा रोज। कशिश, K फॉर काइंड, A फॉर एक्टिव, आदमी यहां से एक्टिव होता है, यहां से मिलता है। S फॉर सिंसियर, पापा मम्मी के लिए कुछ ना कुछ पक्का करना इसको। H फॉर ऑनेस्ट, खुद के प्रति ईमानदार रहना। आगे I फॉर आइडियल, हूं यार भगवान ने पैदा किया। S फॉर सॉबर, जो भी सुनेगा मेरी बात सुनेगा, इनसे क्या है, मैं हूं कशिश। राइट डाउन योर नेम एंड सी द मैजिक। क्यों वेट करें कि कोई हमारे बारे में अच्छा बोले, हम लिखेंगे। और यही आदत उसने सनी को ट्रांसफर कर दिया, सॉरी संजीव को, हाँ निकनेम सनी ट्रांसफर कर दिया। सनी का नाम लिख दिया, एस फॉर सॉपर, यू फॉर यूनिक, एन फॉर नाइस, जो उसकी हैबिट है। और सडनली में क्या हो रहा है, यही इंसान चाहिए था। और फिर जाके मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, ये अच्छा तेरा दिमाग खराब है जैसे प्यार से बात कर ली, पागल तो नहीं थी, पढ़ लिया ना, सडनली दिल के अरमा आंसू में। बजाय उस नेचर को अडॉप्ट करने की, हमने उस इंसान को अडॉप्ट करना चाहिए। वेयर इज लव? लव खुद से, इस बार टॉप करूंगा। लव खुद से पापा के पैसे बचाऊंगा। लव खुद से ट्यूशन पढ़ाऊंगी, हाथ पटाऊंगी। लव खुद से वादा करती हूँ खुद से 1 मिनट भी खाली नहीं बैठूंगी। लव खुद से वादा करता हूँ खुद से सारे क्वेश्चंस के आंसर लेके जाऊंगा। लव खुद से
भाई साहब दिमाग खराब हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जूते बांधूंगा, रनिंग करूंगा, पसीना निकालूंगा ताकि डेड सेल मर जाए और ऑक्सीजन जनरेट हो। लव खुद से प्यार क्या कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है बताने के लिए कि सुनो मेरे को, इससे बढ़िया कॉपी निकालूंगी, पेन निकालूंगी, एक 8 मिनट से 28 मिनट का प्रोसेस करूंगी, एक 8 मिनट से 28 मिनट का प्रोसेस करूंगी, क्या जो भी यहाँ पे है वॉमिट करूंगी पेपर के ऊपर। वॉमिटिंग के लिए इंसान को चाहिए होता है, चाहे वो पापा हो, चाहे मम्मी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो, वो उस पर तो सुन लेगा, हर तरफ नहीं सुनेगा। जो आ रहा है लिखते जाओ, 8 मिनट से 28 मिनट के बीच में पेन रुक जाएगा। और एक्टिविटी में पता करता रहो ह्यूमन बीइंग की क्या होगी। यही था, पन्ना फाड़ो, फेंक दो, अगर पन्ना पढ़ लिया कहीं की नहीं होगी, क्योंकि एक बात दिसंबर की मिलेगी, एक बात नवंबर की मिलेगी, एक बात अक्टूबर की मिलेगी, एक बात 2023 की मिलेगी, एक बात 2019 की मिलेगी, बराबर है। जस्ट क्लैप फॉर। यहां से खाली किया, दिमाग खाली हो गया, अब उस कंपनी का होमवर्क करते हैं, कब खुली थी, कब बनी थी, और जैसे सर ने बोला आप हमारे बारे में क्या जानते हैं सर, 1999 में आपकी कंपनी बनी थी, 2000 में आपका ये आया था, 2003 में ये आया था, 2005 में ये आया था। बंदे का दिमाग खुल गया कि अभी बंदे ने मुझे ज्वाइन नहीं किया, क्या होमवर्क करके आया। और पलट के सवाल कर रहे हैं प्रताप सर से, निचोड़ रहे मेरे को, अगर आपको जॉब ना दे तो, और मैं भी निचोड़ के जवाब दे रहा हूं कोई बात नहीं सर, इसका मतलब भगवान ने इससे अच्छी जगह मेरे लिए और को बना रखी है, पर मैं आया, मतलब सीधा उसकी यहां में मारा कि तेरी वो क्या सोच रहा, मेरी तो अच्छी नहीं गया, मेरे मुंह पे बोल के लाया, इसको नौकरी देने से 2 महीने बाद निकाल दियो। अरे बेटी, मतलब उसको क्या चाहिए था कि मेरे कस्टमर से बेबाक होकर कौन बात कर सकता है, बेबाक। मैंने सीधा एक किया पूरा दिन बिठा के, तेरे को नौकरी ना दे, बंदा क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं, अब जहां पे जा रहा हूं ना ये वाली गलती नहीं करूंगा। हम लोग क्या पूछते हैं, आप सैलरी कितनी मिली, कभी जवाब ही नहीं आता, इस तरह पहले काम कर लिए, कभी नहीं आया जवाब, उल्टे जवाब आ रहे, कितनी दोगे, खड़ी हो बेटा, अच्छा खत्म करें, यस नो, खत्म करें ना, अरे भैया हाँ यार खत्म करें, यस नो, यस कितने बोल रहे हैं, एक, खत्म करने के लिए यस बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नो कितने बोल रहे हैं, अगर आपको घूम के आना तो आप घूमो, पानी वानी पियो, किसी से मिलते आना, टाइम देकर तो भी हो, क्योंकि ये लास्ट में करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेटी खड़ी हो, आप तक को बोलो बेटा, हाँ दोनों खड़ी हो, तीनों आ जाओ आगे, और एक पेन और कॉपी निकालना, कोई भी पेन और कॉपी देना, आता बेटा तीनों आगे, और आप आओ बेटा, आपकी बात करो, आप आओ, एक आप आओ बेटा, और एक कोई भी आप बेटा आप हाँ डिवाइस, एक कॉपी पेन देना, बस बस बिटिया एक ही चाहिए था मेरे को, एक ही चाहिए था बेटा, अच्छा ऊपर आ पेन देना, इसका कौन सा लास्ट पेज यूज कर लूं ना, नहीं सर आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बेस्ट इंटरव्यू ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, बेस्ट इंटरव्यू, आपका नाम क्या है, हर्ष, हर्ष, तुम 6 मिनट के लिए भूल जाओ कि तुम पढ़ रहे हो, तुम किसी कंपनी के कोऑर्डिनेटर हो जो यहाँ पे इंटरव्यू लेने आए, इस प्रेस से बात करेंगे, एचआर है, ठीक है, हर्ष आपको किसी एक एम्प्लॉय को रखना है, उसमें कौन सी एक अच्छी चीज आप ढूंढ रहे हो और कौन सी एक चीज उसमें नहीं होनी चाहिए, ये मैंने लिखा, हर्ष जी आए हैं ओनिडा से, ठीक है, ओनिडा से आए, हर्ष आप
एक इंसान में क्या अच्छी चीज ढूंढ रहे हो अपनी कंपनी में? सिर्फ एक ही बात। वेट, इधर बेटा, आपका नाम क्या है? पंकज। पंकज, आप क्या एक अच्छी चीज ढूंढ रहे हो एक एम्प्लॉय को रखने के लिए? ऑनेस्टी। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पसंद नहीं है कि एक इंसान में ये चीज नहीं होनी चाहिए? इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। बैठ जाओ, थैंक यू। आपका नाम क्या बेटा? अंकित। अंकित, कौन सी एक चीज है जो आप एक इंसान में ढूंढ रहे हो अपनी कंपनी के लिए? लीडरशिप होनी चाहिए। सो गुड बेटा। कौन सी ऐसी चीज उसमें नहीं होनी चाहिए एक इंसान आपको पसंद नहीं? ईगो नहीं होनी चाहिए। बैठ जाओ, इधर हो बेटा। क्या नाम है बेटी आपका? अनु। अनु, आप जो है सैमसंग से हैं, आप एक एम्प्लॉय में क्या ढूंढ रही हैं? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी छोड़ के ना भागे। और क्या एक ऐसी चीज है बेटा? एक्सक्यूजेस ना दे। वाह भाई वाह, ये है इंडियंस। कितनी अच्छी बात बोली जब खुद नौकरी देने की बारी आई। बैठ जाओ। आपका नाम क्या बेटिया? तनु। तनु, आप जो है एमआरएफ से आई हुई हैं, कोई एक चीज बताइए। मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्या जबरदस्त बात बोली है। क्या नहीं होनी चाहिए बेटिया? एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। खा जाता मार कोई। थैंक यू बेटा। आप बेटा ठीक है जीटीबी से आई हुई है, आपका नाम क्या है? भावना। भावना, एक एम्प्लॉय के लिए आपको क्या चाहिए बेटा? सर वो मेरी कंपनी वो अपनी कंपनी मान के काम करे। ठीक है, डेडिकेशन होनी चाहिए उसके लिए कि लाइफ में ऐसा करेंगे। कौन सी ऐसी चीज जो आपको ना पसंद है बेटिया? डिसऑनेस्टी ना पसंद है। हर्ष, समझ में आ गया मैं क्या पूछ रहा था? आप आए हो बेटा किससे? एमआई से, एमआई कंपनी से। एक चीज बताओ सर, वो मेरी कंपनी को अपनी कंपनी की मतलब होमली फीलिंग है कि नहीं? होमली फीलिंग नहीं, कल कपड़े का अपने नाम कर देगा। एक्यूरेट वर्ड बोल। होमली फीलिंग घर ही आ गया तो खाना ही वाला खाऊंगा। सर डेडिकेशन है मेरी कंपनी। एक्यूरेट वर्ड बोलना सीखना। वो वर्ड के ऊपर जाएंगे। मतलब डेडिकेशन तो उसने बोली, नकल क्यों कर रहा है? अपना वर्ड निकाल। सामने कोई लड़की खड़ी है, अब बोल। पापा मम्मी खड़े हैं, लॉयल्टी। देखा कितनी जल्दी आया। एक चीज जो इंसान को ना पसंद है तेरे को? सर जो वो प्रीवियस कंपनी से आया है उसके बाद में वो गलत चीज ना हो। नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। बैठ जाओ। ये है भाई इंटेंट। जब देने की बारी आई तो कितने अच्छे शब्द आए। क्या नहीं होना चाहिए ये भी लिखवा दिया। अब ये तुम अपने अंदर पे ढूंढो क्योंकि तुम नहीं बोली। ये रहा इंटरव्यू। ये पन्ना खुद की तरफ पकड़। राजेश शेखावत नाम का लड़का इंटरव्यू दे रहा है और उसको मैं बोल रहा हूँ राजेश एक काम कर, मेरी सीट पे आ जा। सर मजाक कर रही है। लड़का नहीं यार, इधर आके फील कर क्या गर्मी होती है। मेरी सीट पे बैठती यार फीलिंग होती है। मैंने कहा तुझे मुझे रखना हो तो बंदे की वर्डिंग, सर वाईफाई ऑन होना चाहिए आपका। समझ गए तुम तो साथ में वाईफाई देखते हैं, नेट पे मिलने चाहिए आप। मैं बेटा ठीक है, पंचुअल होने चाहिए ठीक है, टारगेट पूरे नहीं हुए तो सैलरी नहीं देंगे। ऐसी 10 अच्छी बातें करवा दी, याद लिखवा दी। मैंने कहा राजेश भाई ये पन्ना मोड़ा तेरी तरफ, साइन कर और नौकरी ले जा। तो उसकी वर्डिंग क्या है, मजाक कर रहा था। जब देने की बारी आई और लेने की बारी आई, एक इंसान हार पहनने का होता है, मानने का नहीं। नो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल। जिंदगी तुम्हारी लोगों से थोड़ी है, तुमसे है। कितनी बेटियां बैठी हैं हरियाणा की, एक बार करो कुछ ऐसा कि पिता के ये बोले मैं तेरे साथ हूं, जब तू चाहिए तब शादी। सुंदर सा लड़का मिलेगा जीवन में, अच्छा राजकुमार की तरह होगा, मेरा ध्यान रखेगा, मेरी सारी चीजें पूरी करेगा। वो तो बेवकूफ है, कहां से पूरी करेगा वो, तो पता ही नहीं कहां।
भाई साहब, कोई कंपनी का आदमी फेसबुक चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई व्हाट्सएप पे नहीं है, कोई रील नहीं बना रहा। आज क्रेटा है तो अगले साल मर्सिडीज लेंगे। लोग कहते हैं हिंदुस्तान में युवा पैसे कमा के नहीं देता। युवा ही तो पैसे कमा के दे रहा है। कौन सी एज का? 13 से 22 साल। जिस ऐप को यूज कर रहे हो, उस ऐप के मालिक का कहाँ धन्यवाद है आज तक? कहाँ उसने बोला फीस अगली मैं दूंगा? कहाँ उसने बोला थैंक यू वेरी मच? किस चीज के लिए? किस चीज का इंस्टाग्राम? किस चीज की फेसबुक? क्या है फेसबुक? अपने बारे में 5 मिनट नहीं समझे? देख लो फेसबुक की जरूरत कहाँ है। एक ऐसा इंसान, लड़का लड़की ने एक ऐसा इंसान चुनो जो तुम्हारा नेगेटिव नहीं। अरे वो लास्ट में करेंगे, सभी के साथ करेंगे। ये आप सबकी तरफ से Thank you, sir. Now I would like to invite our coordinator of Udbhavna Club. A very good afternoon to all. My name is Arzu Dhaka. I am a student of BSc Honours Economics and I am coordinator of Udbhavna Club. So I would like to thank Sir Sandeep sir for introducing so many nice things over here and lightening up a bulb in all the minds of the young students. And the objective of mine on being here on this stage is to introduce you about Udbhavna Club. I think my club, no, it's our club that is the most vibrant club because we keep on inviting the best trainers over here to motivate students to make them learn best things. Till today, in this session, the Udbhavna Club has organized many of activities like resume building, LinkedIn profile making, CRT, that is the campus recruitment training. Even during the last year, we organized CRT for around all the final year students of the masters and bachelors, and around 4 to 5,000 students who are trained last year. second one, picture. And we expect it's going on like I can use I'm saying that the Udbhavna Club under the organized a campus recruitment training program that was completely organized for the final year students that were passed that are going to be passed in the 2023, and the same we have organized for the 2024 passing out students. And in that, the same way, like Sandeep sir taught so many things, extreme level of things will be taught to you: personality development, interview preparation, group discussions, resume building, and so many intellectual and personality things will be taught by the expert trainers within the 4 days, and the sessions will be quite fruitful for you. And a few months back, we organized a BARC OCA and BGFS program that was completely sponsored, or I can say that was hosted by the BARC program, that is Baba Atomic Research Center. And during that, we told students about the scientific research job, and it was really good. So on the behalf of Bhavna Club, I thanks every one of you for being here, and thank you so much. Now I would like to call Swati, who is the core team member and also coordinate this program for both of things. I, Swati, the core member of Udbhavna Club, thank you all for being here. First of all, I would like to extend my thanks to Dr. Pratap Singh Mali sir for always monitoring us to have such programs for you all. I would like to thank Dr. Sanjeev Singh sir for being here and motivating us so hard. We hope to have this session in future also.
I would also like to thank my team, Arzu, coordinator of Bhavna Club, Parul Soni, co-coordinator of Bhavna Club, and the other core members, Abhishek, Aman, Kashish, Nikita. Thank you all. Thank you, Swati. Now I request everyone to gather outside for the group photo, and the feedback form will be Has Has been been shared. has been shared on your WhatsApp. बाहर काम